ಸಂಸದ ಓವೈಸಿಯವರ ಪೂರ್ಣ ಭಾಷಣ ಕೇಳುವ ಮುಂಚೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿಂದು ಭಾರತ ರತ್ನ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂತ ಸಂಸದ ಅಸಾದುದ್ದೀನ್ ಓವೈಸಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಹಿಂಸೆಗೆ ಕಾರಣವಾದ ರಥಯಾತ್ರೆ ಹೊರಟ ಅಡ್ವಾಣಿಗೆ ಹಾಗೂ ಡಿಸೆಂಬರ್ 6ರಂದು ಬಾಬರಿ ಮಸೀದಿ ಹೊಡೆದುರುಳಿಸುವಾಗ ಮೌನ ಪಾಲಿಸಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟ ನರಸಿಂಹರಾವ್ ಅವರಿಗೆ ಅತ್ಯುನ್ನತ ನಾಗರಿಕ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ನ್ಯಾಯ ನೀತಿಗೆ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ, ಸರ್ಕಾರ ಅನಾಚಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದೆ ಅಂತ ಹರಿಹಾಯ್ದರು. ಮಾತಿನ ಮಧ್ಯೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 6ರನ್ನ ಬಿಜೆಪಿ ಹಬ್ಬವನ್ನಾಗಿ ಆಚರಿಸುತ್ತಿದೆ ಅಂದಾಗ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಸ್ಪೀಕರ್ ಕುರ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಂತ ಯುಪಿಯ ಮೀರತ್ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ರಾಜೇಂದ್ರ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅವರು ಓವೈಸಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 6ರನ್ನ ನಾವು ಆಚರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ, ರಾಮ ಮಂದಿರ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನ ಮಾತ್ರ ಆಚರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶದಂತೆ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಓವೈಸಿಯವರೇ, ನೀವು ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಕಾನೂನು ನಿಯಮ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಲ್ಲವರಿದ್ದೀರಿ. ಒಂದು ಮಂದಿರ ಹೊಡೆದು ಅದರ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟುವಂತಹ ಮಸೀದಿ ನಿಮ್ಮ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ನಿಷಿದ್ಧವಲ್ಲವೇ? ಅಲ್ಲಿ ನಮಾಜ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸರಿಯಲ್ಲ ತಾನೆ? ಇನ್ಯಾಕೆ ಬಾಬರಿ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಅಂತ ಕೇಳಿದರು. ಓವೈಸಿ ತಕ್ಷಣ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪಿನ ಪ್ರತಿಯನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿಡಿದು, ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಈ ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಮಂದಿರ ಹೊಡೆದು ಮಸೀದಿ ಕಟ್ಟಲಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಪುರಾವೆ ಇದೆ ಎಂಬಂತಹ ವಾಕ್ಯ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 6ಕ್ಕೆ ಮಸೀದಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದು ಘನಘೋರವಾದಂತಹ ಅಪರಾಧ ಅಂತ ಇದೆ ಎಂದರು. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈ ಸ್ಪೀಕರ್ ಕೇಳಿದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಹುತೇಕ ಟಿವಿ ಚರ್ಚೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಅಚ್ಯುತ್ ಹನುಮಕ್ಕ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ಇರ್ಬೋದು, ಇವನ್ CT ರವಿ ಇರ್ಬೋದು, ಮುಂತಾದವರೆಲ್ಲ ಇದನ್ನೇ ಕೇಳಿದರು. ಮಂದಿರ ಹೊಡೆದು ಮಸೀದಿ ಕಟ್ಟಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ ಸಿಂಧು ಆಗಲ್ಲ ತಾನೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಮಂದಿರ ಹೊಡೆದು ಮುಸ್ಲಿಮರು ಮಸೀದಿ ಕಟ್ಟಿದರು ಅನ್ನೋದು ಯಾಕೆ? ಸಿಂಧು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವೇ ಹೇಳುವಾಗ ಅದೇ ತಾನೇ ವಾಸ್ತವ. ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಸಿಂಧು ಅಲ್ಲದ ಒಂದನ್ನ ಇಂದಿನ ಆಧುನಿಕ ಕಾಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಧರ್ಮಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆ ಇದ್ದಂತ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಡುವರೆ? ಓವೈಸಿಯ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಬದಲಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಬಾಬರ್ ಒಬ್ಬ ಆಕ್ರಮಣಕಾರ ಅಂತಾದರೂ ನೀವು ಒಪ್ಪುತ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಅರೆ, ಕಾಶ್ಮೀರದ ಹಿಂದೂ ರಾಜನಿಗೆ ಕೇವಲ ಮಂದಿರ ಹೊಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸೈನ್ಯ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನು ಯಾಕೆ ಕೇಳಲ್ಲ? ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆದಂತಹ ಚಳವಳಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳಲ್ಲ? ನೀವು ಕೇವಲ ಬಾಬರ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀರಿ ಅಂತ ಓವೈಸಿ ಹರಿಹಾಯ್ತಾರೆ. ಲೋಕಸಭೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ಧ್ವನಿಯಾಗಲು ಸಾಧ್ಯ? ಇದೇ ಲೋಕಸಭೆ 16 ಡಿಸೆಂಬರ್ 1992ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಬಾಬರಿ ಮಸೀದಿ ಒಡೆದದ್ದು ದೇಶದ ಜಾತ್ಯತೀತ ತತ್ವಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ದೇಶದ ಜಾತ್ಯತೀತತೆ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಮತ್ತು ಕಾನೂನನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಕಟಿಬದ್ಧರಾಗುವುದು ಅಂತ ಇದೇ ಲೋಕಸಭೆ ಹೇಳಿತು. ಮುಂದುವರಿದವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ ಒಂದು ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವ? ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಧಾನಿಯವರು ಜನವರಿ 22ಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಭಾಷಣ ಒಂದು ಧರ್ಮ ಇನ್ನೊಂದರ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿ ಕಟ್ಟುವಂತೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದರ ಮೇಲೆ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದಂತಹ ಧಾಟಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಇಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇದೆಯಾ? ಓವೈಸಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಮರ್ಯಾದಾ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ರಾಮನನ್ನ ಗೌರವಿಸುತ್ತೇನೆ, ಆದರೆ ನಾಥುರಾಮ್ ಗೋಡ್ಸೆಯನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ದ್ವೇಷಿಸುತ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆತ ಯಾರಿಗೆ ಗುಂಡು ಹಾಕಿದನೋ ಅವರ ಕೊನೆಯ ಮಾತು ಹೇ ರಾಮ್ ಅಂತಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಾಬಾ ಮೋದಿ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಇದು, ಅಲ್ಲಿ ಬಾಬರಿ ಮಸೀದಿ ಇತ್ತು, ಈಗಲೂ ಇದೆ, ಮುಂದೆಯೂ ಇರುತ್ತೆ. ಬಾಬರಿ ಮಸ್ಜಿದ್ ಜಿಂದಾಬಾದ್, ಭಾರತ್ ಜಿಂದಾಬಾದ್ ಅನ್ನುತ್ತಾ ಓವೈಸಿ ತನ್ನ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಪೂರ್ಣ ಭಾಷಣ ಇಲ್ಲಿದೆ, ನಿಮಗೂ ಕೇಳಬಹುದು. श्री असदुद्दीन ओवैसी जी। मोहतरम चेयरमैन साहब, आपका बेहद शुक्रिया। मैं इस मोशन की मुखालिफत में खड़ा हुआ हूँ। सर, मैं शुरुआत में हबीब जालिब का एक शेर पढ़ना चाहता हूँ। आप उर्दू जानते हैं और लॉ मिनिस्टर भी उर्दू जानते हैं। हबीब जालिब ने कहा था कि हुक्मरान हो गए कमीने लोग, खाक में मिल गए नगीने लोग, हर मुहिब वतन जलील हुआ, रात का फासला तवील हुआ, आमिरों के गीत जो गाते रहे वही नामो दाद पाते रहे, रहजनों ने रेजनी की थी, रहजनों ने रेजनी की थी, रहबरों ने भी क्या कमी की थी। सर, मैं अभी सुन रहा था हमारे शिंदे ग्रुप के शिवसेना के पार्टी लीडर अपनी तकरीर कह रहे थे, कहा कि 6 दिसंबर में जब बाबरी मस्जिद को शहीद किया जा रहा था तो उस वक्त के वजीर आज़म नरसिम्हा राव पूजा कर रहे थे, आप ही ने कहा, और कहा कि वो डिस्टर्ब नहीं करना। तो ये बड़ा अजीब मौका है कि बीजेपी की ताईदी पार्टी ये कह रही है कि नरसिम्हा राव ने कहा कि मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं पूजा कर रहा हूँ,
और जिसने रथ यात्रा निकाला, इन दोनों को मोदी सरकार ने इस मुल्क का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड दे दिया, सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड दे दिया। तो ये बताता है कि इंसाफ जिंदा है या जुल्म को बरकरार रखा जा रहा है। तीसरी बात यह है कि सर, इस ऐवान में सियासी पार्टियां आएंगी, चले जाएंगी, आप आए, मैं आया, हम भी चले जाएंगे। मैं इस जमीन की गिजा बन जाऊंगा, ये ऐवान तो बाकी रहेगा। मगर सर, मैं ताजुब कर रहा हूं कि लोकसभा मुख्तलिफ आवाजों में कैसे बोल सकता है। लोकसभा तो एक ही आवाज में बोलना चाहिए, और लोकसभा भी भारत के संविधान आइन के बेसिक स्ट्रक्चर का ताबे है। और सर, ये इसलिए कह रहा हूं कि 16 दिसंबर को ये ले कर देता हूं, 16 दिसंबर 1992 को इसी लोकसभा ने एक रेजोल्यूशन पास किया था। आप इजाजत दीजिए तो मैं पढ़ता हूं सर। दिस हाउस, अच्छा, ये गुलाम नबी उस वक्त के मिनिस्टर थे, आज नहीं है, उनका नाम नहीं लेना चाह रहा था। दिस हाउस स्ट्रांगली एंड unequivocally condemns the desecration and demolition of the Babri Masjid at Ayodhya by and at the instigation of forces represented among others by VHP, RSS and the Bajrang Dal, which has caused communal violence in the country. Such act of vandalism was carried out not only in violation of order of Supreme Court, but amounted to an attack on the secular foundations of our country. This House expresses anguish at the happenings and wishes to reiterate its resolve that it will ceaselessly endeavor to uphold the secular and democratic traditions of our country and for the maintenance of rule of law. और एक पैराग्राफ है, नहीं पढ़ूंगा। मैं ताजुब कर रहा हूं कि जब इस ऐवान ने एक रेजोल्यूशन पास किया तो हुकूमत आएगी जाएगी, और हुकूमत, ये मोदी हुकूमत जश्न मना रही है जो 6 दिसंबर को हुआ। तो ये एक बात है सर। चौथी बात यह है कि सर, नहीं, 6 दिसंबर के ऊपर कोई जश्न नहीं है। राम मंदिर के निर्माण की जो प्रतिष्ठा हुई है उसको संबोधन कर रहा है, और वो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा तथ्यों के आधार पर दिए गए निर्णय के कारण से हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है, तो तथ्यों के आधार पर निर्णय है। yes. वो विषय आपने बोल दिया, ठीक है, ओके। सर, परंतु जो मंदिर का निर्माण है वो नियमानुसार सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से तथ्यों को देख करके। एक सेकंड, आप इस्लाम के बहुत जानकार हैं, विद्वान हैं वैसे भी, अब कानून के। यदि किसी अन्य धर्म के स्थान पर मस्जिद बनाई जाए तो शायद उसको मान्य नहीं किया जाता। अभी ASI ने, सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया है कि वहां पर राम मंदिर था। तो इस विषय केवल यह है कि वहां पर राम मंदिर ठीक बना कि नहीं बना, वो विषय हो गया। तो कृपया इस पर यदि आप कुछ बोले तो बोलें प्लीज। सर, मैं आपको गलत साबित कर दूंगा सर। और मैंने रुक तो जाइए। बड़ी इज्जत के साथ सर, मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूं सर। आपको मैं कोट कर रहा हूं सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, पैराग्राफ 1222 रोमन 17, उसमें लिखा गया है, द डिस्ट्रक्शन ऑफ द मॉस्क टुक प्लेस इन ब्रीच ऑफ द ऑर्डर स्टेटस को and the assurance given to this court, the destruction of the mosque and obliteration of Islamic structure was an egregious violation of the rule of law. Egregious का मतलब जो छोटी मोटी अंग्रेजी में आती है, वो क्रिमिनल एक्ट कहा। और सर, आपने कहा था कि वहां पर मंदिर को तोड़कर बनाया गया। सर, मैं आपके सामने ये तमाम चीजें लेकर दूंगा, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के पैराग्राफ्स हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ASI की रिपोर्ट को नकारा। उन्होंने कहा कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अब और मैं रख दूंगा, आप पढ़ लीजिए। अच्छा सर, मैं अपनी तकरीर पर आ जाता हूं सर। तो मैं अपनी बात कर देता हूं सर। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि क्या मोदी सरकार एक समुदाय, एक मजहब की सरकार है या पूरे देश के मजाहिब को मानने वालों की सरकार है? जिसको नहीं मानते उनकी सरकार है, हमको बता दीजिए। क्या मोदी सरकार सिर्फ एक फिक्र और नजरिया हिंदुत्व की सरकार है? क्या इस देश का, इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई मजहब है?
इस वतन अजीज सबके मजहब को मानता है। सर, मेरा मानना है कि इस देश का कोई मजहब नहीं है। क्या ये सरकार 22 जनवरी का पैगाम देकर ये बताना चाहती है कि एक मजहब को दूसरे मजहब के मानने वालों पर गलबा और कामयाबी मिली? क्या आइन इसकी इजाजत देता है? क्या ये पैगाम आप जब ऐवान से दे रहे हैं तो 17 करोड़ मुसलमानों को आप क्या पैगाम दे रहे हैं, ये मैं आप पर छोड़ता हूं। सर, 49 में धोखा हुआ, 86 में धोखा हुआ, 92 में धोखा हुआ, 2019 और 22 में भी इस ऐवान के जरिए हमको धोखा दिया जा रहा है। और अफसोस के साथ कहना पड़ता है सर कि मुस्लिम अक़लियत को हमेशा ये कहा गया कि तुमको भारत के शहरी बरकरार रहने के लिए एक बहुत बड़ी कीमत तुमको चुकानी पड़ेगी, और हम पर इल्जाम लगा दिया गया। सर, क्या मैं बाबर का स्पोक्स पर्सन हूं? क्या मैं जिना का स्पोक्स पर्सन हूं? क्या मैं औरंगजेब का स्पोक्स पर्सन हूं? बताइए सर, आखिर मैं कहां तक आप मुझे लेकर जाएंगे? दूसरी बात यह है सर, दूसरी बात यह है कि फिर 6 दिसंबर के बाद देश में फसाद हुआ, नौजवानों को टाडा में डाला गया जो बूढ़े होकर निकले। यकीनन आपकी सरकार नहीं थी, आपकी सरकार नहीं थी। अच्छा, बल्कि मैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की इज्जत करता हूं, मगर मैं नाथूराम गोडसे से नफरत करता हूं। मेरी नस्लें नफरत करती रहेंगी, क्योंकि नाथूराम गोडसे ने उस शख्स को गोली मारी जिसके जबान से आखिरी लफ्ज निकले हे राम। सर, छठी बात यह है कि 87 में मलियाना हाशिमपुरा हुआ, 83 में नेल्ली हुआ, 44 में जम्मू में नस्ल कशी हुई, 2022 में हल्दीवानी में कत्ल हुआ। इतने धोखे सबसे बड़े किसको दिए गए? असदुद्दीन ओवैसी को दिए गए। मगर फिर भी मुझसे ही कहा जाता है कि वफादारी को तुम साबित करो अपनी ओवैसी। सर, आज भारत के 17 करोड़ मुसलमान अपने आप को अजनबी और एलिनेट महसूस कर रहे हैं। मैं बहुत बड़ी नाइंसाफी होती है, सर ये कोई तारीखी नाइंसाफी को इंसाफ नहीं किया जा रहा है, स्पीकर बल्कि सर, अंग्रेजी में। स्पीकर सर, केवल एक प्रश्न का जवाब ओवैसी साहब दे दें कि बाबर को वो आक्रमणकारी मानते हैं या नहीं मानते हैं? पुष्पमित्रा संघा को आप क्या मानते हैं? बताओ, पुष्पमित्रा संघा को आप क्या मानते हैं? जम्मू के वो कश्मीर के वो राजा को क्या मानते हैं जिसके पास एक फौज थी मंदिरों को तोड़ने के लिए? आप क्या मानते हैं? यही तो मैं कह रहा हूं कि निशिकांत दुबे 47 में आजादी मिली, असदुद्दीन ओवैसी से बाबर की बात पूछ रहे हैं। तुम गांधी की बात पूछते, तुम बोस की बात पूछते, तुम जलियांवाला बाग की बात पूछते, तुम काला पानी में जो मुसलमान शहीद हो गए उनकी बात पूछते, मगर बाबर की बात पूछी जाती है। तो सर, मैं आपको बता रहा था, खामखा डिस्टर्ब किए सर, मुझे मेरा वक्त ले लिए निशिकांत दुबे। सर, मैं आपसे कह रहा था, मोदी हुकूमत ये पैगाम दे रही है भारत के मुसलमानों को कि जान बचाना है या इंसाफ चाहते हो। मैं कह रहा हूं, मैं भीख नहीं मांगूंगा, मैं इस नंगी तासुब को कबूल नहीं करूंगा, मैं दूसरे दर्जे के शहरी के मौक़िफ़ को कबूल नहीं करूंगा, मैं अपनी शनाख्त को नहीं मिटने दूंगा। अब मैं झूठी और दिल फरेब बातों पर हरगिज भरोसा नहीं करूंगा। मैं वो काम नहीं करूंगा जो बीजेपी और नाम निहाद सेकुलर पार्टियां चाहती हैं। मैं वो काम करूंगा जो आपको पसंद नहीं है, संविधान के दायरे में रहकर। सर, कंक्लूजन में मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज इस देश को किसकी जरूरत है? इस देश को अयोध्या में, तारीख शायद नहीं पढ़ते होंगे, मौलाना अमीर अली कौन थे? पुजारी बाबा रामचरण दास कौन थे? अयोध्या के पुजारी थे। दोनों ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ी थी और दोनों ने, अंग्रेजों ने इनको गिरफ्तार किया और एक पेड़ पर मौलाना अमीर अली को और पुजारी रामचरण दास को फांसी दे दी गई। देश को इनकी जरूरत है। देश को शंभू प्रसाद, अचन खां, ये राजा देवी बख्श सिंह के फौज में थे, अंग्रेजों से मुकाबला किया, मुसलमान की लाश को जला दिया गया और शंभू प्रसाद को दफना दिया गया। इस देश को यह जरूरत है, देश को बाबा मोदी की जरूरत नहीं है। आज भारत को अयोध्या के मौलाना अमीर अली और रामचरण दास
अचन खान, शंभू खान की जरूरत है। सर मैं अभी सुन रहा था ये नाम निहाद सेकुलर पार्टियों के बयानात को। क्या होता है सर, आप खत्म कर रहा हूं, क्या होता है सर, जब काजी साहब गवाहों को लेकर दुल्हन के पास जाते कि तुमको निकाह कबूल है, तो दुल्हन शर्मा के खामोश बैठ जाती। तो इनकी खामोशी रजामंदी की अलामत है। जी जी। तो सर मैं खत्म करने से पहले यह बताना चाह रहा हूं कि जब वजीर आजम जवाब देंगे तो क्या वो भारत के 140 करोड़ जनता के लिए जवाब देंगे या फिर सिर्फ हिंदुत्व की फिक्र रखने वालों का जवाब, मैं खत्म कर जवाब देंगे। मैं ये देश दुनिया मुसलमान देख रहा है। सर मैं आपको ये भी बताना चाह रहा हूं, आखिर में कंक्लूड कर रहा हूं सर, 1 मिनट चाहिए, 1 मिनट चाहिए सर। सर मेरा मानना यह है कि आज मैं बहैसियत एक भारत के गयूर मुसलमान के, लेट मी स्टैंड एज अ टॉल इंडियन मुस्लिम एंड से that the light of Indian democracy today is at its dimmest today, sir. Sir, in conclusion, मेरी फिक्र में मेरा ईमान मुझे कहता है कि जिस जगह पर मस्जिद थी, है और रहेगी, बाबरी मस्जिद है और रहेगी, बाबरी मस्जिद जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद, जय हिंद।